Very good morning, everyone. Today we are going to start the chapter, The Working of Institutions. What the working of institutions means, that how our country is being run. We know that we are having the government which is elected by us only, and that government works. But how that government works, that we are going to discuss in this chapter, right? This is your very first page of the book, and it is carrying an office order. You can clearly see it. It is a government order. I'll just read it out for you people, that on August 13, 1990, the government of India issued an order. ये जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स होते हैं, इट इज कॉल्ड द ऑफिस मेमोरेंडम्स, राइट. इवन आप लोग भी अगर कभी स्कूल से कोई सर्टिफिकेट इशू करवाएंगे ना, सपोज इफ यू वांट टू हैव अ ट्यूशन फी सर्टिफिकेट or any other certificate, if you will demand from the office na, it will be carrying one reference number, right. हर एक लेटर जो ऑफिशियली इश्यू होता है उसमें एक रेफरेंस नंबर होता है, so that कि later on if any communication is required, then that reference number can be used. Anyhow, this is also an office memorandum, and it also has a number. जो नंबर है इसका, that is OM. OM means office memorandum number. It's 36012 by 31 by 90. 90 क्यों? क्योंकि 90 में ये इशू हुआ था, right? The year 90, dated 13/8/1990. Now ये जो ऑफिस मेमोरेंडम है, दैट यू कैन सी हियर, आप इसको पूरा तो खैर नहीं देख सकते हैं, बट इसके बारे में हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे कि इसमें है क्या. जो आपके जानने के लिए इसमें चीज है, दैट इट इज साइंड बाय द जॉइंट सेक्रेटरी who is an officer in the Department of Personnel and Training in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, and it was quite short, barely one page. ये जो ऑर्डर है ये देखिए कि सिर्फ एक पेज का है, छोटा सा ऑर्डर है ये. इसे जॉइंट सेक्रेटरी who is an officer in the Department of Personnel and Training, and this department is under the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, right. ये बेशक छोटा सा एक ऑर्डर है, और इसका सब्जेक्ट क्या है? 27% रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज. व्हेन दिस ऑर्डर वाज इशूड, सो बेशक छोटा सा है, एक पेज का है, बट इट हैज लेड टू लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज एंड लॉट ऑफ स्ट्रगल्स ऑल्सो. देखने में ये कि आम एक ऑर्डिनरी सर्कुलर लग रहा है जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू हुआ है, और गवर्नमेंट जो है ऐसे रोज के, आप कह सकते हैं कि हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर्स आर इशूड एवरी डे ऑन डिफरेंट मैटर्स, राइट. वी आल्सो नो कि हमारी इतनी सारी मिनिस्ट्रीज हैं और इतने सारे ऑफिस के जो काम है, तो ऐसे ऑर्डर्स बहुत सारे निकलते हैं. लेकिन यहाँ पर हम इसकी ऑर्डर को डिस्कस क्यों कर रहे हैं? इसका रीजन ये है कि जब आप इस ऑर्डर को देखेंगे और इस ऑर्डर के ऊपर जैसे लोगों का रिएक्शन हुआ, राइट, सो ये सब जो चीजें थी, इसमें हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं गवर्नमेंट के, दैट आर इन्वॉल्व्ड. सो दैट इज व्हाई वी हैव पिक्ड दिस ऑफिस मेमोरेंडम, right. As it is very important because it became a source of controversy for several years. What was the reason? The reason is that this order had announced a major policy decision. अब मैं आपको बिफोर वी प्रोसीड, अगर मैं आपको एक छोटा सा इसमें भी बता देती हूँ कि अभी रिसेंटली भी हमारी गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया था फॉर द फार्मर्स लॉज, राइट. जो एग्रीकल्चरल फील्ड में एक फार्मर्स लॉज पास किए गए, राइट. सो वो जब लॉ पास किया गया तो उसका भी इतना ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ, जिसको आप बहुत अच्छे से आजकल ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट. इट्स अ स्टेट वाइड, इट्स अ कंट्री वाइड प्रोटेस्ट. You also know that the farmers are there. They have blocked the borders of Delhi, and they are sitting there since almost 2 months,
They are struggling hard and putting pressure on the government to withdraw this law. Why? Because that law is not there in the favor of the farmers, right? So yes, इस जिस order की हम बात कर रहे हैं, it announced a major policy decision. इसमें क्या था? That 27% of the vacancies in civil post and services. Civil post क्या होती हैं? Which is not a military one. Military की नहीं है ये. बाकी जितने भी government posts और services हैं, which are under the government of India, are reserved for the socially and educationally backward classes, which is SEBC. तो जो लोग सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, उनके लिए एक नई कैटेगरी बनाई गई SEBC, और उसमें 27% जो थी वो इसे रिजर्वेशन जो थी वो SEBC क्लास को दी गई. Now, the people who belong to caste that are considered backward by the government were included in this category. इससे पहले तक जो जॉब रिजर्वेशन थी या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन थी, दैट वाज अवेलेबल ओनली टू द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. बट नाउ अ न्यू थर्ड कैटेगरी वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड, दैट वाज SEBC. And now only persons who belong to backward classes were eligible for this quota of 27% jobs. और बाकी जो लोग थे वो इन 27% जॉब्स में compete नहीं कर सकते थे. अब ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था जो लिया गया, एंड एज ऑलरेडी सेड कि इट वाज साइंड बाय द जॉइंट सेक्रेटरी. अब अगर हम ये कहें कि जिसने साइन किया है उसने डिसीजन लिया होगा, तो ये आई मीन बहुत ज्यादा जस्टिफाइड नहीं लग रहा है, बिकॉज दैट डिसीजन कुड हैव नॉट बीन टेकन by a single person or by the person who has signed that document. जिस पर्सन ने उस डॉक्यूमेंट को साइन किया है, he was only an officer who was following the instructions given by the Ministry of Personal Public Grievances and Pensions, जिसके अंडर में that officer was working, right? और ये जो डिपार्टमेंट है इस ऑफिसर का, वो इस मिनिस्ट्री के अंडर काम कर रहा था. तो ये जो एक डिसीजन था वो उस सिग्नेटरी अथॉरिटी ने नहीं लिया था. तो ऐसे ही हमारी कंट्री में जो डिसीजंस हैं, ऐसा नहीं है कि कोई सिंगल पर्सन इज टेकिंग द डिसीजंस, एंड द मेनी पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन नॉट ओनली टेकिंग डिसीजंस but also in the other major functionaries in our country. इतनी बड़ी कंट्री चल रही है, it is being run, तो एक पर्सन या एक इंस्टीट्यूट या एक डिपार्टमेंट के सिर पे तो नहीं चल रही होगी, राइट? सो हम ये देख सकते हैं कि हम एक विजुअलाइज कर सकते हैं कि कितने सारे लोग, कितने सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इस वर्किंग में इन्वॉल्व होंगे. सो बिफोर वी प्रोसीड, एक छोटा सा हमारा रिकैप्चुलेशन है जो ऑलरेडी आप लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं. वो फैक्ट्स हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे. दैट प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड इज द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री. सो हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट जो है, ही इज द हेड ऑफ द स्टेट. स्टेट हियर इज रेफरिंग टू द कंट्री, राइट? एंड ही इज द हाईएस्ट अथॉरिटी इन द कंट्री. सेकेंड वन, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. अब हम लोगों को क्या लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ही शायद कंट्री का हेड है. ऐसा नहीं है. प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री, whereas prime minister is the head of the government. But in our country, the prime minister actually exercises all government powers. जितनी भी हमारी गवर्नमेंट की पावर्स हैं, वो सारी हमारी प्राइम मिनिस्टर जो है वो ही एंजॉय करता है. He takes most of the decisions in cabinet meetings. राइट? कैबिनेट मिनिस्टर्स की मीटिंग्स होती हैं, नो डाउट डिस्कशंस होते हैं, बट फाइनल डिसीजन नॉर्मली लाइज विद द प्राइम मिनिस्टर. Then is the parliament, which consists of the president and the two houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. In the previous class also we have studied that Lok Sabha it is having 545 members, Rajya Sabha is having 250 members. The president, he nominates 2 members in the Lok Sabha and can nominate 12 members for the
राज्यसभा, the prime minister must have the support of majority of Lok Sabha members. अगर प्राइम मिनिस्टर के पास मेजॉरिटी नहीं है लोकसभा मेंबर्स की, तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो कोई भी गवर्नमेंट की पावर्स जो है वो एंजॉय नहीं कर सकता है। तो अब हमने जैसे पढ़ा प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स। So do you think that these all people are involved in the decision regarding the office memorandum? ये जो ऑफिस मेमोरेंडम की हम बात कर रहे हैं, क्या उसमें सिर्फ यही लोग इन्वॉल्व थे? So let's talk about again this thing कि ये जो ऑफिस मेमोरेंडम था ये बना कैसे, ये कैसे लाइमलाइट में आया, या कैसे ये गवर्नमेंट ने इसको पास किया और कैसे ये एक लॉ बन गया? So what happened that the government of India had appointed the second backward classes commission in 1979. ये शुरू होता है एपिसोड 1979 में। I mean, ये जो ऑर्डर निकला था 1990 में निकला था, लेकिन इसकी जो पास्ट हिस्ट्री है that has started in 1979, जब हमारी गवर्नमेंट ने एक बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनाया था, और इसका जो हेड था he was BP मंडल, राइट? ये जो कमीशन बनाया गया था 1979 में, इट वाज हेडेड बाय BP मंडल, और इसी नाम पे ये जो कमीशन था ये मंडल कमीशन भी कहलाया। I remember when this commission was passed, like we were studying in school. So उस टाइम पे इस मंडल कमीशन का इतना ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था पूरे वर्ल्ड वाइड। So we had also witnessed the protest of against this मंडल कमीशन। Anyhow, ये जो कमीशन बिठाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसको क्या टास्क दिया गया? दैट the commission had to determine the criteria to identify the socially and educationally backward classes in India. उन्हें एक क्राइटेरिया बनाना था जिससे कि जो लोग सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं उन्हें पहचाना जा सके, उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सके, और उनकी इंप्रूवमेंट के लिए, उनकी एडवांसमेंट के लिए कुछ स्टेप्स लिए जा सके। So this commission had they did the survey and they had given their report in 1980. इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी 1980 में, and they had also given many of the recommendations, and one recommendations for the advancement of this class which was given by the Mandal Commission was that the 27% of government jobs should be reserved for the socially and educationally backward classes. अब ये कमीशन का काम यहाँ पर खत्म हो गया। कमीशन ने क्राइटेरिया बना दिया, कमीशन ने ये एक रिकमेंडेशन भी दे दिया कि इनकी एडवांसमेंट के लिए 27% जो कोटा है इनको दिया जाए, राइट? उसके बाद when this commission had submitted the report, तो उसकी रिपोर्ट और रिकमेंडेशंस जो थे that were discussed in the parliament, और काफी सालों तक पार्लियामेंट में इसका डिस्कशन होता रहा। Many of the parliamentarians and the parties, they demanded the implementation of commission recommendations. I mean, ये काफी सालों तक, आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 8-9 सालों तक ये डिस्कशन होता रहा, क्योंकि कई लोग इसके फेवर में थे, कई लोग इसके फेवर में नहीं थे। Meanwhile, what happened कि 1989 के लोकसभा इलेक्शंस हुए। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जब इलेक्शंस होते हैं तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, दे पिक दोज इश्यूज which are which the people also you can say wish to have it, right? तो वो उन इश्यूज को पकड़ते हैं जो इन्हें लगता है कि इनका वोट बैंक जो है या इनको वोट्स जो हैं वो ज्यादा दिला सकते हैं, राइट? और उस समय मंडल कमीशन के डिस्कशंस चल रहे थे, तो इसमें जनता दल which was a political party, it promised that if voted to power, it would implement the Mandal Commission report. In the last chapter हमने क्या पढ़ा था कि जब हरियाणा के विधानसभा इलेक्शंस थे, तो चौधरी देवीलाल he promised that if his party will win, he will waive off the loans of the farmers.
तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है ऐसे ही कोई प्रोमिसेस जो है वो करती हैं अपने इलेक्शंस के टाइम पे, सो एज टू अट्रैक्ट द वोटर्स. सो हियर जनता दल under the leadership of VP Singh promised that if voted to power it would implement the Mandal Commission report. अब इस इलेक्शंस में जनता दल जो थी इट फॉर्म्ड द गवर्नमेंट, और इनके जो लीडर थे वीपी सिंह वो उस समय बने प्राइम मिनिस्टर. अब जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए और उन्होंने ये ऑलरेडी प्रॉमिस कर दिया था दैट ही विल इम्प्लीमेंट द Mandal Commission report, right? So what he did, he just immediately implemented it. Anyway, how he has done it, I will just discuss it now. तो वीपी सिंह की गवर्नमेंट जो थी वो बन गई. Now, the President of India, in his address to the Parliament, announced the intention of the government to implement the recommendations of the Mandal Commission. अब जब प्रेसिडेंट ने भी ये अपना एक इंडिकेशन दे दिया कि ये जो रिकमेंडेशंस हैं दैट शुड बी देयर नाउ. सो ऑन 6 अगस्त 1990 द यूनियन कैबिनेट जहां पर प्राइम मिनिस्टर एंड हिज मिनिस्ट्री or the cabinet ministers, they took a formal decision to implement the recommendations. ये सारे स्टेप बाय स्टेप ये हम पढ़ रहे हैं कि कैसे ये ऑफिस मेमोरेंडम जो था ये बना, राइट. उसके बाद नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह इन्फॉर्म द पार्लियामेंट अबाउट दिस डिसीजन थ्रू a statement in both the houses of parliament. राइट. नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह ने पार्लियामेंट में अनाउंस किया, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में, दैट दिस रिपोर्ट रिकमेंडेशन आर टू बी इम्प्लीमेंटेड. नाउ अब डिसीजन ले लिया गया कि अब ये जो रिकमेंडेशंस है वो इम्प्लीमेंट करने हैं, राइट. सो द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट वाज सेंट टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग. क्यों? क्योंकि ये जो मैटर है रिजर्वेशंस का जो मैटर था दैट वाज द मैटर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग. सो यहां पर डिसीजन भेज दिया गया. इस डिपार्टमेंट के जो सीनियर ऑफिसर्स थे they drafted an order in line with the cabinet decision and took the minister's approval. उन्होंने एक ड्राफ्ट किया, एक लेटर ड्राफ्ट किया, और वो जो लेटर था उसके बाद इन्होंने अपने फिर मिनिस्टर को दिखाया, मिनिस्टर से अप्रूव करवाया, राइट. अब ये जो मिनिस्टर्स हैं हमारे, ये ऑफिस ऑर्डर साइन नहीं करेंगे. दे आर नॉट द सिग्नेटरी अथॉरिटीज, दे आर द डिसीजन मेकर्स, राइट. सो अब इस डिपार्टमेंट का जो हाईएस्ट ऑफिसर था, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का जो हाईएस्ट ऑफिसर रहा है, he signed the order on behalf of the central government, right. अब ये जब ऑर्डर निकाल दिया गया, अब ये जो ऑर्डर जितने भी डिपार्टमेंट से, कंसर्न डिपार्टमेंट से, उनको इन ऑर्डर्स की कॉपी भेज दी गई. उसके बाद कुछ महीनों तक ये जो मैटर था, द मंडल कमीशन रिकमेंडेशंस, दीज वर द मोस्ट हॉटली डिबेटेड इश्यू इन द कंट्री. न्यूज़पेपर्स हैं, टेलीविजन्स हैं, मैगजीन्स हैं, ये इट वाज फुल ऑफ द डिफरेंट व्यूज एंड ओपिनियंस ऑफ दिस ऑन दिस इश्यू. अब लोगों तक जब ये पहुंचा डिसीजन, तो इट लेड टू द प्रोटेस्ट एंड काउंटर प्रोटेस्ट, सम ऑफ विच वर वायलेंट इवन, राइट. बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ. कुछ प्रोटेस्ट ऐसा था जो वायलेंट भी रहा. लोग जो थे उन्होंने बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट किया. रीजन बिकॉज दिस डिसीजन अफेक्टेड द थाउजेंड्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज. जब इतनी जॉब्स में से 27% जो है वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए रिजर्व हो जाएंगी, तो बाकी लोग जो है उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल ही खत्म होने वाली थी. सो दे strongly opposed it. They reacted so strongly. Some even believed कि already इतना सारा रिजर्वेशन जो है वो दिया जा रहा है, तो ये जो है ये और ज्यादा इनइक्वालिटीज को बढ़ावा दे सकता है, राइट. इसके अलावा ये जो आम लोग हैं उनके लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो कम हो रही थी इससे.
some felt कि जो कम्युनिटीज शुरू से अनरिप्रेजेंटेड रही हैं उन्हें अब थोड़ा रिप्रेजेंटेशन जो है वो मिल रहा है। तो ये दोनों ही तरफ से लोग जो थे वो एक I mean, they were some were favoring, some were totally against, but a large number of people were against this order. Others felt that this was unfair as it would deny equality of opportunity to those who did not belong to backward communities. तो अब जो backward communities को belong ही नहीं करते हैं उनके साथ तो ये बहुत ज्यादा एक injustice था। उन्हें jobs जो थी आगे वो नहीं मिल पानी थी और ऐसे में they felt that this is totally against the national unity also, right? So ये हमने देखा कि पहले पार्लियामेंट ने डिसीजन लिया, राइट? आई मीन पहले एक कमीशन बिठाया गया, उसके बाद डिसीजन लिया गया और डिसीजन लेने के बाद ये लोगों तक पहुंचाया गया, ये ऑर्डर्स निकाले गए। अब ऑर्डर्स जब निकाले गए तो ये अब इट वाज अ प्रोटेस्ट। अब इसमें हमने फिलहाल देखा कि हमारे दो तरीके के जो ऑर्गन्स थे उन्होंने काम किया। फर्स्ट वाज लेजिस्लेचर, जिन्होंने ये डिसीजन लिया कि दैट द रिकमेंडेशंस आर टू बी इम्प्लीमेंटेड, दैट वाज लेजिस्लेटर। उसके बाद इसको फॉरवर्ड किया गया डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जहां पर उन्होंने ऑर्डर बनाया, ड्राफ्ट किया और उस ऑर्डर को लोगों तक पहुंचाया। तो ये हमारा कौन सा ऑर्गन ने काम किया? एग्जीक्यूटिव। हमारे गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, राइट? तो लेजिस्लेटिव ने अपना काम कर दिया, उन्होंने डिसीजन ले लिया। उसके बाद एग्जीक्यूटिव ने भी डिसीजन जो है उसको इंप्लीमेंट कर दिया, उसको लोगों तक पहुंचा दिया। अब लोगों ने प्रोटेस्ट किया, वायलेंट प्रोटेस्ट रहा, तो अब लोग जो थे वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे। तो अब इसको रिजॉल्व किसने किया, राइट? अब इस चीज को रिजॉल्व किसने किया, दैट वी विल टॉक अबाउट टुमारो, कि ये जो डिस्प्यूट था वो किसने कंट्रोल किया या किसने उसको रिजॉल्व किया, राइट? दैट वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस इट इन टुमारोज क्लास।